Hello, a very warm good morning to the all student. Today I will going to discuss about the internal structure of the ear. In previous lecture we have already discussed about the external structure of the ear and middle structure of the ear. We also discuss about the external structure of the ear. In that type of structure, the pinna structure and external auditory meatus, what type of structure and how to function in the ear during the hearing. And the second type of structure we were already discussed, like a middle ear. In the middle ear we have discussed about the ear ossicles like malleus, incus and stapes bones, and there are three type of ear ossicles found in the ear. How many number of the ear ossicles? So we asking the examiner asking in the examination. The total number of ear ossicles are 6 in the both ear. Today we will discuss a very important structures like cochlea and vestibular apparatus. So we can say that the internal structure of the ear formed by two type of important structure. First is the vestibular apparatus and second is the cochlea. Cochlea is a coiling structure, but the vestibular apparatus is formed by three type of structures. First is the semicircular canal, second is the utriculus chamber, and third is the sacculus chamber. There are three type of semicircular canal found in each internal ear. First is anterior semicircular canal, and second is posterior semicircular canal. Then third is lateral or external type of semicircular canal. The anterior and the posterior semicircular canal are originate from a same point that is called curs communis. That type of semicircular canal open into a chamber, a large chamber-like structure that is called utricular chamber, which open by a small chamber that is called ambula. Ambula is a part of the end part of the lateral part of the semicircular canal. तो बच्चों आप यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर समझोगे कि हमारे अंदर जो इंटरनल ईयर है वो इंटरनल ईयर किन दो स्ट्रक्चर से बनता है, कौन कौन सी वो स्ट्रक्चर्स है जो पाई जाती है इंटरनल ईयर में, और कैसे ये यहाँ फंक्शन करती है. एक्चुअली में जो हियरिंग का और इक्विलिब्रियम और बैलेंसिंग का जो फंक्शन है वो यहाँ पर ये इंटरनल ईयर ही करता है, और इसके अंदर जो बैलेंसिंग का फंक्शन करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर अपरेटस. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन वेस्टिबुलर अपरेटस एंड वेयर इज प्रेजेंट? तो द वेस्टिबुलर अपरेटस इज रिलेटेड टू द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी विच इज फाउंड inside of the internal ear, which is formed by three type of structures like semicircular canal, like utriculus chamber and sacculus chamber. तो इन सब बातों का बच्चों आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमारे अंदर ईयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है. तो यहाँ हम यहाँ पर इंटरनल ईयर हमारा आज का टॉपिक है. द इंटरनल ईयर. The internal ear, it is consist of there are two type of main structure found in the inner side of the ear. Internal ear also known as the inner ear. First is bony labyrinth and second is membranous labyrinth. What do you mean about the bony labyrinth and what is the membranous labyrinth? Bony meaning यहाँ पर bone, और लेबिरिंथ का मीनिंग यहाँ पर स्ट्रक्चर है, एक जिगजैग स्ट्रक्चर है, एक कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ए टिपिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फाउंड इन द inner ear that is called labyrinth, which is formed by the bone, so that is called bony labyrinth. When that type of structure formed by the membrane, that is called membranous labyrinth.
बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एक्चुअल में है क्या बच्चों? ठीक है, वैसे ही मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे अपने पास में ये एक पेन है, ये इस पेन के अंदर यहाँ एक रिफिल डाल ले यहाँ, तो ये पेन आउटर जो या सराउंडिंग स्केलेटल है दैट इज कॉल्ड बोन, दैट इज फॉर्म बाय द कंसिस्ट बाय द बोन, सो कॉल्ड द बोनी लेबिरिंथ. अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द पेन, इनसाइड ऑफ द पेन फाउंड ए दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज द रिफिल. रिफिल इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. तो ऐसी स्ट्रक्चर बच्चों मैं जनरली आपको समझाने का प्रयास करूं. यहाँ पर सपोज करो ये हमारे पास में बोन है, बोन इस प्रकार से प्रेजेंट है, ये बोन है और ये बोन है और इसको हम कहेंगे बोनी. लेबिरिंथ का मीनिंग एक कवर हो गया यहाँ पर. तो ये कंप्लीट आउटर कवरिंग ऑफ द इंटरनल ईयर दैट इज फॉर्म बाय द बोन, सो कॉल्ड बोनी लेबिरिंथ. अब ऐसी ही स्ट्रक्चर इसी रूप में यहाँ पर जो दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है अंदर की साइड में यहाँ प्रेजेंट है ये, तो ये एक रिफिल लाइक स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म है यहाँ मेम्ब्रेन से, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. तो बच्चों अब मैं आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ना हो गया यहाँ पर झिकझैक स्ट्रक्चर हो, सपोज करो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार के ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गई हो, ये ऐसी इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से ये बन गई हो यहाँ, तो ये बोन की स्ट्रक्चर यहाँ बन गई, दैट इज कॉल्ड बोनी लेबिरिंथ. झिकझैक पाथ फाउंड इन द इंटरनल ईयर दैट इज कॉल्ड लेबिरिंथ. तो बोन से फॉर्म हो रही है इसलिए हम कहेंगे इसे बोनी लेबिरिंथ. तो ये बात समझे यहाँ पर. अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इंटरनल है, इसके अंदर इसी रूप में यहाँ पर ये मेम्ब्रेन इसी शेप के अंदर पाई जाती है. जैसे मान लो कोई फॉसिल बनता है किसी यहाँ रॉक के ऊपर, उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर यहाँ बन जाती है. तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? बोनी. और झिकझैक है इसलिए इसे कहेंगे बोनी लेबिरिंथ कहेंगे यहाँ पर. तो ये स्ट्रक्चर बनी. इनर जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन से बनी हुई है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. तो इस बात को आप बच्चों यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक बोनी लेबिरिंथ क्या है, एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है. अब जो बोनी लेबिरिंथ है, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, बोनी लेबिरिंथ है, ये बोनी लेबिरिंथ है. इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है. पूरी बोनी लेबिरिंथ में ये आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ फाउंड ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड और द बोनी लेबिरिंथ कैविटी फॉर फिल बाय ए फ्लूइड दैट इज कॉल्ड पेरीलिम्फ. इसको हम कहेंगे यहाँ पर पेरीलिम्फ. ये बच्चों आपको एक बार समझाने की दृष्टि से यहाँ बताया जाता है, पेरीलिम्फ के नाम से इस फ्लूइड को हम जानेंगे यहाँ पर. और दूसरे टाइप का जो यहाँ पर फ्लूइड बनता है, दूसरे टाइप का जो फ्लूइड बनता है, इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अंदर की साइड में, इनसाइड ऑफ द, यहाँ ये क्या मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है इस फ्लूइड को हम कहेंगे यहाँ पर एंडोलिम्फ. तो ये एक कंसेप्ट है. इस कंसेप्ट को बच्चों अच्छी तरह आप समझ लीजिए कि इंटरनल ईयर है, इसमें दो टाइप का फ्लूइड यहाँ पाया जाता है. फर्स्ट इज पेरीलिम्फ, सेकंड इज एंडोलिम्फ. पेरीलिम्फ कहाँ भरा रहता है? यहाँ बोनी लेबिरिंथ में. एंडोलिम्फ कहाँ भरा रहता है? तो आंसर आएगा यहाँ पर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर. इसी प्रकार इस टाइप की स्ट्रक्चर यदि बनती है तो हम यहाँ पर कहेंगे ये क्या है? पेरीलिम्फ है. इसके अंदर यदि कोई फ्लूइड भरा है, ये क्या है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है. इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है इसको हम कहेंगे यहाँ पर एंडोलिम्फ, इसको हम कहेंगे यहाँ पर पेरीलिम्फ. तो इस प्रकार बच्चों ये बात आपकी यहाँ समझ में आई है. अब एक कंप्लीट जो ईयर है, इंटरनल ईयर है, उसकी स्ट्रक्चर यहाँ ले. ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है, जिसके अंदर दो एरिया दिखाए गए हैं बच्चों. ये एक एरिया है, ये एक एरिया है. दोनों एरिया की स्ट्रक्चर आप देखोगे कि एक एरिया की ये अपर टाइप है और ये लोअर है. लोअर जो एरिया है दैट इज कॉल्ड कोक्लिया. इस स्ट्रक्चर को हम बच्चों क्या कहेंगे? कोक्लिया कहेंगे. अब यहां आप देखिएगा इस पूरी स्ट्रक्चर में ये येलो कलर में दिखाई गई है, ये येलो कलर में यहाँ पर है, इसको हम कहेंगे बोनी लेबिरिंथ. इसके अंदर रेड कलर में इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ.
इसमें यहाँ जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम यहाँ पर कहेंगे पेरिलिम्फ, और यहाँ जो फ्लूइड है इसको हम कहेंगे एंडोलिम्फ। तो उसी बात को बच्चों समझाने का मैंने प्रयास किया है। एक रेड कलर में और एक येलो ब्राउन कलर में जो स्ट्रक्चर है, येलो ब्राउन कलर में जो चारों तरफ स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड बोनी लेबिरिंथ, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द बोन। व्हाट टाइप ऑफ बोन? द पिट्टस बोन found surrounding the membranous labyrinth, and inner side of the bony labyrinth found a membranous labyrinth. So that is two type of structure. In lower structure is a coiling structure, this is called cochlea, and upper structure known as the vestibular apparatus, which is formed by three type of semicircular canal. Canal number 1 anterior canal, canal number 2 posterior canal, canal number 3 that is called lateral canal. तो bony labyrinth that is called bony labyrinth और semicircular canal का यहाँ पर bony labyrinth है, और इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर membranous labyrinth इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट है। तो ये यहाँ दिखाया गया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, सेमीसर्कुलर डक्ट, ये बॉली लेबिरिंथ, सेमीसर्कुलर कैनाल्स। ये बात आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए, ये ओपन हो रहे हैं किसमें? एम्पुला में। कैनाल 1, कैनाल 2, कैनाल 3, तीनों कैनाल 3 एम्पुला में यहाँ पर ओपन हो रही है। ये चीज ध्यान रखें, यहाँ 3 एम्पुला यहाँ प्रेजेंट है। और इसके बाद में ये चैम्बर है, चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2। इस चैम्बर को हम कहेंगे वेस्टिब्यूल चैम्बर और सेकुलस चैम्बर, या यूट्रिकुलर चैम्बर और सेकुलरी चैम्बर कहेंगे यहाँ पर। और बीच में देखिएगा ये एक विंडो यहाँ पर दिखाई गई है, एक विंडो ये, एक विंडो ये, 2 विंडो है, एक राउंड विंडो है, एक ओवल विंडो है, जो मिडिल ईयर इसके अंदर से ओपन होता है। और इसके बाद में यहाँ पर कनेक्शन ऑफ द कोक्लियर डक्ट दिखाई गई है, तो ये कोक्लियर डक्ट है जो यहाँ इस विंडो से ओपन है, यहाँ से ओपन हो रही है, इसको हम कहेंगे ओवल विंडो से। कोक्लियर डक्ट किसके अंदर ओपन हो रही है? ओवल विंडो से। और ये दूसरी विंडो जहाँ एंड हो रहा है, जिसे हम कहेंगे राउंड विंडो, कोक्लियर डक्ट है वो एंड हो रही है, वहां कहेंगे राउंड विंडो। और फिर ये एक कॉइलिंग स्ट्रक्चर यहाँ बना रही है, ये सेंटर में अपेक्स ऑफ द कोक्लिया हम कह सकते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर डायग्राम के द्वारा बच्चों इसे समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट दी स्ट्रक्चर। तो ये आप यहाँ बहुत अच्छी तरह इसे समझ गए होंगे यहाँ। तो अब आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इसको मैं आगे देखूं, इसको बनाने का प्रयास करूं। तो the internal ear, also known as the labyrinth. The labyrinth divided into 2 portions mainly. First is the bony labyrinth, second is the membranous labyrinth. The bony labyrinth also divided into 3 structures. First is cochlea, second is vestibule, third is semicircular canal. 3 type of structure found in the bony labyrinth. And the membranous labyrinth also formed by 3 type of duct. First is cochlear duct. The cochlea formed by the consist of the cochlear duct, and the vestibular consist of the utriculi and seculi, and the semicircular canal formed by the semicircular duct. तो इस प्रकार से 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है फाउंड इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, एंड 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आल्सो फाउंड इन दी बोनी लेबिरिंथ। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर बच्चों कि जिस डायरेक्शन में, जिस शेप में बोनी लेबिरिंथ होगा, उसी शेप में अंदर की साइड में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है, ऐसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कहेंगे इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आई है कि किस प्रकार से इंटरनल ईयर यहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, अब आगे हम यहाँ पर फिर यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि ये आपके पास में देखिएगा बच्चों कि यहाँ बनाया गया है क्या, ये पिन्ना है, ये फिर यहाँ डक्ट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी, और ये यहाँ ये ड्रम है, ये ड्रम ओपन हो रहा है यहाँ मिडिल ईयर में, और मिडिल ईयर फिर यहां से ओपन हो रहा है किसमें, इसे इंटरनल ईयर के अंदर। यहाँ इस टाइप की एक यहाँ टी सेक्शन ईयर का, इस प्रकार से सेक्शन ले एक ईयर का, तो ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई गई है। यहाँ इसमें बाहर निकाल के इसको देखें,
इस स्ट्रक्चर को हम बाहर निकाल लें तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, जिसमें ये अपर पार्ट तो क्या है, यहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकुलस, यूट्रिकुलस चैम्बर, और ये नीचे का जो पोर्शन है ये यहाँ पर कोक्लियर पोर्शन है, जो यहाँ पर वो कोक्लियर डक्ट से फॉर्म है, जिसमें टिम्पेनिक डक्ट भी है और कोक्लिया भी है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये यहाँ जो पर्पल कलर का है बोनी लेबिरिंथ, और यहाँ ग्रीन कलर का है, स्काई कलर का है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अंदर जो पर्पल कलर में बाहर की साइड में दिखाया गया है इसको हम बोनी लेबिरिंथ, और ये जो दिखाया गया है इसको हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहेंगे यहाँ। और इससे जो नर्व यहाँ निकलती है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व यहाँ ओपन होती है, तो ये बाहर की साइड में जा रही है। ये यहाँ सेमी सर्कुलर डक्ट है, एंटीरियर डक्ट, लेटरल डक्ट और पोस्टीरियर डक्ट है। तो इस प्रकार से इसको आप बच्चों समझ सकते हो। थोड़ा सा इसको अलग से बना के भी यहाँ बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये यहाँ प्रेजेंट होती है। तो एक सिंपली फॉर्म में बच्चों देखिएगा, ये हमारे पास में इस प्रकार से एक ये अपन कह सकते हैं एक डक्ट है, और इस डक्ट में यहाँ पर ये कैनाल है और ये दूसरी कैनाल है, और इस प्रकार से ये यहाँ पर है तीसरी कैनाल है। इस प्रकार से ये 3 कैनाल है, और ये तीनों ही कैनाल यहाँ बच्चों इस प्रकार से आपके पास में ये स्ट्रक्चर बनाते हुए यहाँ प्रेजेंट है। ये देखिएगा इस प्रकार से ये 3 स्ट्रक्चर है। तो ये कैनाल सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसको हम कहेंगे एंटीरियर कैनाल है। इस कैनाल का नाम दे दिया गया एंटीरियर कैनाल। इस कैनाल को हम कहेंगे यहाँ पर बच्चों पोस्टीरियर कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल के नाम से जानेंगे। और ये जो बीच में एक कैनाल और दिखाई गई है इसको हम कहेंगे लेटरल कैनाल। तो ये बच्चों आपके यहां तक समझ में आया है, इस कंडीशन को हम कह सकते हैं ऐसे। अब यहां एक स्ट्रक्चर और होती है, यहां मैं यहां बनाने का प्रयास करूं। ये एक स्ट्रक्चर है, और इसी प्रकार एक स्ट्रक्चर यहां पर है, एक स्ट्रक्चर यहां पर है, यहां पर, और एक स्ट्रक्चर बच्चों यहां पर है इस प्रकार से। तो ये 3 क्या है, एम्पुला रूपी यहां पर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ एम्पुला, एम्पुला के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, इस बात को आप समझ गए हैं यहाँ, ठीक है। अब ये ओपन हो रही है किसमें, इसको कहेंगे यूट्रिकुली, यूट्रिकुली चैम्बर कहेंगे इसे। और यूट्रिकुली यहां इस प्रकार से ओपन होता है, इसको हम कहते हैं सेकुली, सेकुली चैम्बर कहेंगे। सेकुली चैम्बर देखिए, ये चैम्बर जो है ये फिर यहां पर एक इस प्रकार से कोइलिंग स्ट्रक्चर के द्वारा 2 ऐसी ब्रांच रहती है, और ये ब्रांच ऐसे इस प्रकार से ओपन होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट होती है। इसको एक ब्रांच को हम कहेंगे ओवल विंडो, ओवल विंडो उसमें, और दूसरी ब्रांच को हम कहेंगे राउंड विंडो। तो ओके बच्चों, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से, ये सेंटर ऑफ द कोक्लिया है। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए यहां इसके सराउंडिंग जो है, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के सराउंडिंग यहां पर इस प्रकार की एक व्हाइट कलर में मैं बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर क्या, किसको कहोगे, ये चारों तरफ इसके सराउंडिंग ये स्ट्रक्चर, जो ये यहाँ स्ट्रक्चर इस टाइप की और सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम देंगे, तो आउटर जो रीजन है इसका नाम दिया गया बोनी लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ। अब बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। और जो येलो कलर की जो ये स्ट्रक्चर बनाई गई है इसको हम कहेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है और यहाँ बोनी लेबिरिंथ क्या है। अब इसके अंदर जो मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, यहाँ जो फ्लूइड भरा रहता है, इस फ्लूइड को हम कहेंगे पेरिलिम्फ, ऐसे फ्लूइड को पेरिलिम्फ। अब चाहे कहीं हो, जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके चारों तरफ भी पेरिलिम्फ है,
तो यूट्रिकुलस के चारों तरफ भी पेरिकुलम है, सेकुलस के चारों तरफ भी पेरिलिम्ब है, तो कोक्लिया के सराउंडिंग भी कौन सा फ्लूइड है, तो आप कहोगे यहाँ पेरिलिम्ब फ्लूइड है, वो कोक्लिया के चारों तरफ भी है। जबकि अंदर की साइड है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में अब देखिए यहाँ से सेमी सर्कुलर कैनाल हो, ये भी इट इज ए पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, सेमी सर्कुलर कैनाल डक्ट, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द membranous labyrinth, also known as the utriculi chamber and seculi chamber. Both are collectively known as vestibule chamber, which is filled by the endolymph. यहाँ पर ये फिल किससे, एंडोलिम्फ के द्वारा ये फिल है यहाँ पर, तो एंडोलिम्फ है यहाँ, और बाहर क्या है यहाँ पेरिलिम्फ है। चाहे कोक्लिया के अंदर हो वहां पर भी कौन सा यहाँ फ्लूइड है, तो इसको भी आप कहोगे यहाँ एंडोलिम्फ प्रेजेंट है। ये बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। इस प्रकार से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, वेस्टिबुलर अपरेटस किसे कहेंगे। वेस्टिबुलर अपरेटस का एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहां लिख रहा हूं वेस्टिबुलर, ये नीट के अंदर कई बार पूछा गया है। वेस्टिबुलर ऐप क्या है, तो इसका मीनिंग हो गया, यहां पर याद रखें आप, सेमी सर्कुलर कैनाल नंबर 1, नंबर 2 यूट्रिकुली चैम्बर, और नंबर 3 सेकुली चैम्बर। ये दैट इज कलेक्टिवली नोन एज ए वेस्टिबुलर अपरेटस। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, आप याद रखें कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द वेस्टिबुलर अपरेटस एंड वेयर इज प्रेजेंट। तो द वेस्टिबुलर अपरेटस इज फॉर्म बाय सेमी सर्कुलर कैनाल, देन सेकंड इज यूट्रिकुली चैम्बर, देन थर्ड इज सेकुली चैम्बर। ये यहां बना रहे हैं क्या, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो वेस्टिबुलर अपरेटस कहेंगे। वेस्टिबुलर apparatus से related to the balance forming of the body। बॉडी के अंदर जो बैलेंस को फॉर्मिंग करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहाँ वेस्टिबुलर apparatus है। और सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कोक्लिया। कोक्लिया यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप देखिएगा, ये रिलेटेड टू दी हियरिंग। हियरिंग से जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, यहाँ पर कोक्लिया है। तो इस बात को बच्चों आप बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ मैंने 2 पोर बताए गए, ये यहाँ मिडिल ईयर के जो पोर है, एक ओवल विंडो है, एक राउंड विंडो है। तो यहाँ ओवल विंडो ओपन होता है किसमें, कोक्लिया के अंदर, और यहाँ राउंड विंडो के अंदर एंड होता है कौन, या इंटरनल ईयर का कोक्लिया यहाँ। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरनल ईयर। अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ से बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग यदि बन गई तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छी तरह दे पाएंगे। यहाँ आगे हम देखते हैं कि क्या इसका यहाँ विवरण कर रहा है, क्या इसका डिटेल क्या है। तो देखिएगा, इंटरनल ईयर देखिए इज एनक्लोज द पिट्रस पार्ट temporal bone which form a bony capsule like structure outside the internal ear. It is called bony labyrinth। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। किस बोन से बनता है, तो आंसर क्या होगा अपना, पिट्रस बोन से बनता है। पिट्रस बोन किसका पार्ट है, तो टेम्पोरल बोन का पार्ट है। पिट्रस बोन किसका पार्ट है, तो आंसर होगा टेम्पोरल बोन है, उसका पार्ट है कौन, पिट्रस बोन, और वो एक कवरिंग बना रहा है, और इस कवरिंग को हम कहेंगे यहाँ पर बोनी लेबिरिंथ है। तो आप इस बात को समझ गए। इट इज द केविटी ऑफ ईयरिंग अपरेटस। ये एक केविटी लाइक स्ट्रक्चर है, और ईयरिंग अपरेटस की केविटी इसको हम कहते हैं। द इंटरनल ईयर इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। इसे हम कहेंगे बच्चों मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो ये बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मीनिंग, अब मैं दूसरी स्ट्रक्चर में बात करूं तो ये मान लो एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे यहाँ बोनी लेबिरिंथ है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, बोनी लेबिरिंथ। ये क्या हो गई यहाँ पर, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ।
तो इस बात को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह अब कि सराउंड जो पिट्टस बोन है उसकी जो केविटी बन रही है, उससे जो कवरिंग बन रही है, इसको हम बोनी लेबिरिंथ कहेंगे, और अंदर मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ पर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं। यहाँ तो इसके अंदर जो फ्लूइड फिलअप है यहाँ सराउंडिंग में, एक सेक्शन ले और सेक्शन ले तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। इसको कहेंगे पेरिलिम्फ, और अंदर जो फ्लूइड है इसको हम कहेंगे एंडोलिम्फ। तो अब ये दो क्वेश्चन आपके बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो क्लियर हो गए यहाँ, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और यहाँ पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह अब क्लियर हो गए, आई होप। अब देखिएगा आगे डिटेल स्ट्रक्चर हम लें। द बोनी लेबिरिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ आर कनेक्टेड बाय ए कैविटी इज कॉल्ड पेरिलिम्फ कैविटी। ओके, पेरिलिम्फ कैविटी जिसके अंदर पेरिलिम्फ फ्लूइड फिलअप रहता है। पेरिलिम्फ लिक्विड इज फिल्ड इन इट, द एंडोलिम्फ इज फिल्ड इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो बच्चों दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द नीट। तो इस चीज को, ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छी तरह अब दे पाएंगे। इसके कहानी को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देन देयर आर two main bag-like chamber in the membranous labyrinth. Utriculi chamber number 1 is, and second is Shaculus chamber. दो टाइप की चैम्बर यहाँ प्रेजेंट है, and both these chamber are connected together by a thin canal is called shaculo-utriculi duct. बच्चों क्या कह रहा है कि एक चैम्बर तो यहाँ पर है, मैं स्मॉल तरीके से यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चैम्बर यहाँ है और दूसरा चैम्बर यहाँ एक डक्ट बन रही है और दूसरा चैम्बर यहाँ है। तो ये तो चैम्बर है यूट्रिकुलरी चैम्बर और ये चैम्बर है शेकुली चैम्बर, और इसके बीच में जो डक्ट है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, इस डक्ट को हम कहेंगे शेकुलो। ऊपर से क्या है, नीचे से शेकुलो, ऊपर यूट्रिकुली, तो शेकुलो यूट्रिकुली डक्ट ये इसको फॉर्म कर रही है। और यहाँ क्या है, ये यहाँ है इसकी, ये क्या है यहाँ इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल कहेंगे। या A thin endolymphatic duct open into shaculo-utricular duct. Then this endolymphatic duct open into endolymphatic sac situated at the back side of the skull on the other side. Utriculus is a comparatively large and three semicircular canal arise from utriculus at the 90-degree angle to each other and open into the utriculus again. यहाँ हमने बच्चों बात की थी कि 3 सेमीसर्कुलर कैनाल है, कैनाल नंबर 1, कैनाल नंबर 2, कैनाल नंबर 3। ओपन कहाँ हो रही है, ये कहाँ ओपन हो रही है, तो ये ओपन हो रही है इस चैम्बर के अंदर। इसको हम कहेंगे कौन सा चैम्बर, यूट्रिकुली चैम्बर, यूट्रिकुली चैम्बर। ये कैनाल एंटीरियर कैनाल, ये कैनाल पोस्टीरियर कैनाल, और ये कैनाल लेटरल कैनाल और एक्सटर्नल कैनाल। तो इस प्रकार से, और ये भी कहां से, इसे के यहाँ हम कह सकते हैं कि 3 जो और स्मॉल चैम्बर है इसको हम कहेंगे एम्पुला, और ये एम्पुला है, इस एम्पुला को हम बाहर निकालें, ये एम्पुला है, ये इस एम्पुला में यहाँ पर सेंसरी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रिस्टा। क्रिस्टा रिलेटेड टू दी बैलेंस, ये क्रिस्टा, यहाँ पर भी सेंसरी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ पर मेकुली। तो ये बच्चों एक स्ट्रक्चर और यहाँ पर नई स्ट्रक्चर बनी कि विच टाइप ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर फाउंड इन दी एम्पुला एंड सेकुला एंड यूट्रिकुला। इन द एम्पुला द क्रिस्टा लाइक sensory structure are present, but in the seculi and utriculi there are another type of sensory structure present that is called maculae. Both are related to formation of balancing of the body. तो हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम बनाने में ये दोनों स्ट्रक्चर है वो हेल्पफुल है। कौन, क्रिस्टा और मैकुली। ओके बच्चों, इसके बाद में आप देखिए दीज आर कॉल्ड व्हाट, तो सेमी सर्कुलर कैनाल,
semicircular canal, there are three type of semicircular canal. First is anterior semicircular canal, also known as superior semicircular canal. Then second is posterior semicircular canal, and third is external semicircular canal or lateral semicircular canal or horizontal semicircular canals. So there are three type of semicircular canal found in the इंटरनल ईयर विच इज कनेक्टेड विद द यूट्रिकुलाई। तो बार बार मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये हमारे पास में यूट्रिकुलाई है, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है, एक, दो और तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल ये है यहां पर। तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है और ये एक्सटर्नल, लेटरल और हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल है यहां पर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैनाल अराइज इन दी फॉर्म ऑफ ए सिंगल कैनाल कॉल्ड कर्स कम्यून। तो ये यहां से ओरिजिन और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एक जगह से, इसको हम कहेंगे कर्स कम्यून के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां बच्चों एंटीरियर कैनाल और पोस्टीरियर कैनाल जहां से अराइज हो रही है, जहां से ओरिजिन हो रही है, जहां से डेवलप हो रही है, एक सिंगल ट्यूब से डेवलप हो रही है, इसे सिंगल ट्यूब का नाम क्या है, क्या लेबलिंग कहेंगे? तो इसका नाम दिया गया कर्स कम्यून के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, आगे चले हम। देन द डिस्टल एंड ऑफ द ईच सेमीसर्कुलर कैनाल इज somewhat swollen called ampulla. डिस्टल एंड, एंड डिस्टल एंड का मीनिंग एक एंड तो ओरिजिन हो रहा है और ये एंड यहां। इसी प्रकार है इसका दूसरी कैनाल थी, यहां ओरिजिन हो रही थी, यहां ये एंड यहां, और इसी प्रकार इसका यहां पर ये एंड। तो 1 2 3 ये तीन आपके पास में क्या है, एम्पुला है बच्चों, एम्पुला। तो हमारे पास में तीन एम्पुला यहां प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में सेकुलस इज स्मॉलर देन द यूट्रिकुलस चेंबर। कहने का मीनिंग ये चेंबर बड़ा चेंबर है, ये ट्यूब है, ये चेंबर छोटा चेंबर है, ये क्या है यूट्रिकुलस, ये क्या है सेकुलस। तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सा चेंबर बड़ा है, कौन सा चेंबर छोटा है। तो आपको देख के यहां पर स्ट्रक्चर भी हम देखें तो ये चेंबर बड़ा है, यूट्रिकुलर चेंबर इज लार्जर देन दी सेकुलर चेंबर। यहां तो दोनों चेंबर यहां है, वो जिस डक्ट से ज्वाइंट है उस डक्ट को हम कहेंगे सेकुलो यूट्रिकुलाई डक्ट कहते हैं यहां पर। देन इट बैक साइड इज कॉइल्ड लाइक स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड कोक्लियर कैनाल, इट इज ऑल्सो नोन एज लेजिना। इसके नीचे यहां पर, यहां से कोइलिंग है, मैं इस प्रकार की कोइलिंग यहां बना रहा हूं, यहां एक कोइलिंग है, इस कोइलिंग को हम कहेंगे यहाँ कोक्लियर डक्ट है, और कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ कोक्लिया। द कोक्लिया फॉर्म बाय द कोक्लियर डक्ट। द कोइलिंग ऑफ द कोक्लिया is different in the different animals, like a 2 and 3 by 4 coiling found in the human being, like a 2 and 1 by 2 coiling found in the whale, and like a 1 and 1 by 2 coiling found in the other like animal frog. The length of the cochlear duct of the human and whale are 2 and 2 3 by 4, 2 and 1 by 2 and 1 and 1 by 2 coiling respectively. The cochlear canal is connected by seculus by a small duct is called the ductus reunius. तो ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, यहाँ पर कोक्लियर कैनाल क्या सेकुलस चैम्बर से यहाँ कनेक्ट है। ये हमारे पास में, अब मैं सेकुलर के अंदर, ये सेकुलर के यहाँ, ये सेकुलर का यहाँ एक डक्ट है, ये डक्ट क्या कर रही है, इस प्रकार से कोइलिंग है, ये कोइलिंग है। ये जो डक्ट है, इस डक्ट का एक नाम दिया गया, इसको कहेंगे सेकुलाई चेंबर, सेकुलाई चेंबर। और इसके नीचे यहां डक्ट है, इसको कहेंगे हम डक्टस रियूनियस, डक्टस रियूनियस के नाम से जानते हैं यहां। तो वेस्टिबुलर अपरेटस लाइक सेकुलर चेंबर,
or cochlear duct which is connected by a small duct like structure that is called ductus reunius. तो it is very important क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर यहाँ डेप्थ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ईयर का जो इंटरनल ईयर है इसका यहाँ कोक्लियर रीजन और वेस्टिबुलर रीजन आपस में कनेक्ट रहता है, कौन सी स्ट्रक्चर है जो इसे कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये यहाँ हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, ऑल द कॉइल ऑफ द कोक्लियर कैनाल आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द फ्लेक्सिबल लिगामेंट। इसका मीनिंग यहाँ पर है कि बच्चों ये जो कोक्लियर कैनाल है, ये कैनाल है, ये डक्ट है, ये डक्ट आपस में एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर से यहाँ कनेक्ट रहती है, इसको हम कहते हैं लिगामेंट के नाम से जानते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर बच्चों क्या कहलाएगी, लिगामेंट कहलाएगी। तो यहाँ लिगामेंट प्रेजेंट होता है एक कॉइलिंग स्ट्रक्चर के रूप में, कॉइलिंग डक्ट के रूप में, या जो दोनों को कनेक्ट किए हुए रखता है। इन द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ द कोक्लिया इन ह्यूमन देयर आर प्रेजेंट ए पिलर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मोडियोलस। सेंटर कोक्लिया, ये सेंटर है, ये इस प्रकार से ये सेंटर है। तो ये जो सेंटर पार्ट है इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मोडियोलस। ये बच्चों एक बार एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फिर भी यहाँ पूछ सकते हैं क्योंकि अब नीट और एम्स आपकी एक ही एग्जाम है, तो यहाँ आप इस टाइप के क्वेश्चन को फिर यहाँ पुटअप किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। तो आप ध्यान रखें इस टाइप के वर्डिंग को भी। देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर। अब तक बच्चों हमने क्या किया, एक आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ईयर की बात की थी, इनर ईयर की बात की थी। आउटर ईयर में जहां लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द बोनी लेबिरिंथ और हाउ मेनी पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, विच टाइप ऑफ डक्ट कनेक्ट टू ईच अदर ऑफ द इंटरनल ईयर। तो ये सब स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद में अब अंदर जाए, हम थोड़ा और अंदर की तरफ देखें, इंटरनल ईयर के अंदर, कोक्लिया के अंदर, वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर, तो आपको क्या दिखाई देगा। तो इसे हम कहेंगे द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द इन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ। द इनर वॉल ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज lined by cuboidal epithelial cell and outer wall is then lined by the connective tissue richly supplied with the blood capillaries। दो टाइप की वाल है बच्चों, किसमें, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ। इससे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में दो टाइप की यहाँ पर सेल है, एक वाल है, ये दो वाल है, एक वाल तो ये और एक वाल ये वाल जो कौन सी वाल, यहाँ एक वाल इनर वाल है, इसको हम कहेंगे इनर वाल। इस वाल को हम कहेंगे यहाँ पर आउटर वाल ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। The inner wall of the membranous labyrinth formed by special type of cell that is called cuboidal epithelium। ये जो सेल है यहाँ, इस प्रकार की सेल्स यहाँ प्रेजेंट है बच्चों, इसको हम कहेंगे क्यूबोइडल। ये एपिथेलियल टिश्यू का एक क्वेश्चन भी बनता है कि क्यूबोइडल एपिथेलियम में ईयर में कहाँ पाई जाती है। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की इनर वॉल बनी रहती है और आउटर वॉल है, ये यहाँ फाइब्रस मेम्ब्रेन है, इस प्रकार से ये फाइब्रस स्ट्रक्चर यहाँ बनती है। ये आउटर वॉल है, ये बनती है यहाँ कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। यहाँ कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइबर है और इलास्टिन फाइबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल यहाँ प्रेजेंट होती है। एंड यहाँ पर आप देखोगे ब्लड वेसल्स भी रिचली सप्लाई है बच्चों, किसके अंदर है, यहाँ ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स यहाँ इसकी सप्लाई है, ये यहाँ क्या ब्लड वेसल्स, इसकी सप्लाई भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर। यहाँ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज एम्प्टी इनसाइड। ये मोस्टली अन्य कोई स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होती, ओनली एंडोलिम्फ है वो फिलअप रहता है, तो बाकी ये खाली दिखाई देता है ऐसे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के रूप में। इस इंटरनल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखें एक डायग्राम के द्वारा, तो इसमें बताया गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। तो आप कहोगे यहाँ देयर आर 3 चैम्बर फाउंड इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। आउटर चैम्बर दैट इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई, मिडिल चैम्बर दैट इज कॉल्ड स्केला मीडिया एंड द इनर चैम्बर और लोअर चैम्बर दैट इज कॉल्ड स्केला टिम्पेनाई।
Scala vestibuli and scala tympani connected with a small structure apex of the cochlea that is called helicotrema. The scala vestibuli and scala tympani connect to each other at the apex of the cochlea that is called helicotrema. तो इस प्रकार की बच्चों एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पर अलग से बनाने का प्रयास करें थोड़ा सा, तो आप केवल इंटरनल ईयर की बात करेंगे और उसको समझने का प्रयास करें, तब देखिएगा ये एक टीएस सेक्शन ले, ये मान लो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर ली हमने और ये एक स्ट्रक्चर ली है, ये स्ट्रक्चर है यहाँ, इसके बीच में यहां पर आप देखोगे एक और स्ट्रक्चर है यहां पर, ये एक स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट है बच्चों, आप देखोगे ये यहां पर कनेक्ट है, इस प्रकार के 3 चैम्बर यहां प्रेजेंट है, 1, 2 और 3। अपर चैम्बर है, यहां पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस पोर है, ये भी मेम्ब्रेनस पोर है। इस पोर को हम कहेंगे ओवल विंडो। ये कहां से आ रहा है? मिडिल ईयर का एक हिस्सा है। इस पोर को हम कहेंगे यहां पर राउंड विंडो। इसका मीनिंग यहां से इंटरनल ईयर स्टार्ट होता है और यहां पर ये खत्म होता है। अब 3 चैम्बर है, इस चैम्बर का नाम दिया गया है स्केला वेस्टिबुलाई, द आउटर चैम्बर ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। पूरे कोक्लिया का टीएस सेक्शन लें तो स्केला वेस्टिबुलाई इट इज अ पार्ट ऑफ द बोनी लेबिरिंथ, ओके, एंड द लोअर चैम्बर ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ आल्सो फॉर्म्ड बाय द बोनी लेबिरिंथ, दैट इज कॉल्ड स्केला टिम्पेनाई। Scala tympani, the scala tympani and the scala vestibuli is filled with the perilymph. Perilymph, due to it is a part of the bony labyrinth, it is also filled by the perilymph due to part of the bony labyrinth. Then the middle part of the membranous labyrinth, only membranous labyrinth, it is a part of the cochlea, which is part of the cochlea or cochlear duct, is called scala media. Scala media. The scala media filled by the endolymph. ओके बच्चों, इस बात को आप समझ गए। In the apex of the cochlea, the scala vestibuli and scala tympani is connected by a membranous-like structure that is called a helicotrema. Helicotrema. ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का कि हेलिकोट्रेमा कहां प्रेजेंट होती है। तो ये यहाँ अपर चैम्बर है, क्या है? अपर चैम्बर को हम कहेंगे स्केला वेस्टिबुलाई, लोअर चैम्बर को हम कहेंगे स्केला टिम्पेनाई। दोनों इस अपेक्स पर यहाँ कनेक्ट है, इस कनेक्शन को हम कहेंगे हेलिकोट्रेमा मेम्ब्रेन, जो यहाँ कनेक्ट किए हुए रखती है किसको? स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई को यहाँ पर कनेक्ट करती है। इस चीज को हम बच्चों समझ गए। बीच का जो सेंटर का पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे स्केला मीडिया। स्केला मीडिया इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। The upper part of the scala media formed by a special type of membrane, and the lower part of the scala media it is also formed by a special type of membrane. The upper type of a membrane, the roof of the membrane of the scala media is formed by Regener membrane. Regener membrane. And the floor of the scala media is formed by the basilar membrane. At the basilar membrane found some special type of a cellular-like structure, that is the 2 type of cell, supporting cell
and form a special sensory organ that is called organ of corti. It is very, very important organ of the corti, which is found inside of the scala media, which is situated at the basilar membrane. The organ of corti, which is a organ of the corti, is surrounded by a membrane that is called tectorial membrane. What is the name of the membrane? That is called tectorial membrane. Tectorial membrane. It is very, very important membrane. It is helpful for the hearing. तो इस बात से को आप बच्चों यहाँ पर समझे होंगे। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर यहाँ चल रही है जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को समझाने का प्रयास किया है। ओवल विंडो है, यहाँ से साउंड वेव एंटर करती है और यहाँ से बच्चों यहाँ पर साउंड वेव है वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है और इसका डायरेक्शन इस प्रकार से होता है। ये डायरेक्शन है यहाँ से ये साउंड वेव इस प्रकार से चलती है और यहाँ पर आके और ऑब्जॉर्ब हो जाएगी सेल के द्वारा, जहां पर हेंसन सेल, पिलर सेल एंड डिटर सेल। आगे हम डिटेल करेंगे। मेनी टाइप ऑफ सेल फाउंड इन दी ऑर्गन ऑफ द कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ द कोर्टाई इज ए पार्ट ऑफ द हियरिंग रिलेटेड ऑफ द हियरिंग रीजन। द मेन सेंसरी ऑर्गन ऑफ द हियरिंग इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो कोर्टाई इज ए नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसके रिस्पेक्ट में इसका नाम दे दिया गया ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो इस बात को बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और कोक्लिया का टीएस सेक्शन ले तो कैसे यहाँ पर दिखाई देता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो बहुत अच्छी तरह हम यहाँ पर समझ सकते हैं इस चीज को। इसकी डिटेल यहाँ पर देखें आगे। इट इज कैविटी ऑफ फिल बाय द एंडोलिम्ब ऑन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ विच इज ए मिल्की म्यूसिलेजिनस फ्लूइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। ये क्वेश्चन है कैसा फ्लूइड है, मिल्की है और म्यूसिलेजिनस फ्लूइड है। कौन एंडोलिम्ब? द डिस्टल एंड ऑफ द ईच सेमी सर्कुलर कैनाल बिकम स्वोलन इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला आपको मैंने अभी बता दिया कि जो कैनाल का जो सोलन पार्ट है इस प्रकार से जो एम्पुला है और इसके अंदर जो यहाँ एक सेंसरी स्ट्रक्चर फिलअप रहती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ क्रिस्टा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि क्रिस्टा किसके अंदर फिलअप रहता है, तो आंसर होगा एम्पुला के अंदर। ये क्या है हमारा एम्पुला। इस एम्पुला के अंदर क्या है, क्रिस्टा प्रेजेंट है। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है आपके? एक एक बात क्लियर है? आप पूरा अटेंशन है पूरा बनाए रखें इस स्क्रीन के ऊपर और हर बात को हर पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आई होप हर बात आप हर पॉइंट आप समझ रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये लेक्चर आपकी रैंक को यहाँ बूस्टअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इस बात को आप समझे। इन दिस एम्पुला the internal cuboidal epithelium form a ridge like projection is called aquastic ridge. Ampulla immovable microvilli are found at the free edges of the sensory cell of the aquastic ridge. These microvilli are numerous in number. तो एम्पुला का जो क्रिस्टा है वहां की स्ट्रक्चर बताने का प्रयास किया है ये। These are called the stereocilia. Along with these, there are found a single movable cilium which is called the काइनोसिलिया। इसीलिया की स्ट्रक्चर देखते हैं, मैंने स्टीरियोसिलिया है वो इमूवेबल स्ट्रक्चर है और काइनोसिलिया एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो यहाँ मूवेबल स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ प्रेजेंट है। ओटोकोनिया आर एब्सेंट इन द क्रिस्टा ऑफ एम्पुला। All the microvilli of the ridges are binded together like a bag and form as a copula. तो यहाँ क्रिस्टा के अंदर एक स्ट्रक्चर और बनती है, उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कहेंगे, कोपुला के नाम से यहाँ जानते हैं। कैसे? यहाँ कह रहा है कि ये था आपके पास में एम्पुला। ओके, एम्पुला के अंदर यहाँ था ये क्रिस्टा और क्रिस्टा में ये क्या है यहाँ पर कोपुला। तो अब देखिए एम्पुला के अंदर क्या है यहाँ पर क्रिस्टा और क्रिस्टा में ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे, कोपुला। तो इस
इस बात को हम यहाँ पर समझ गए होंगे बच्चों अच्छी तरह। कोपुला क्या है, एम्पुला क्या है और क्रिस्टा क्या है। ये एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर पाई जाने वाली सेंसरी स्ट्रक्चर है, संवेदी संरचना है, जो बैलेंसिंग के समय सेंसेज है ब्रेन तक भेजने का फंक्शन यहाँ पर करती है। ऑटोकोनिया जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होती है, एब्सेंट होती है। वन स्ट्रक्चर ईच is present in a utriculus and one in the sacculus. These are called maculae. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन बनता है कि मैकुली कहां प्रेजेंट होती है, तो यहाँ सेकुलस के अंदर और यूट्रिकुलस के अंदर मैकुली प्रेजेंट होती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे। द न्यूमरस कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स आर फाउंड इन एंडोलिम्फ। These are called ऑटोकोनिया। ये बच्चों यहाँ 100% इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि ऑटोकोनिया वेयर इज प्रेजेंट है, तो ऑटोकोनिया आर फाउंड इन दी सेकुली और यूट्रिकुली चैम्बर। Which structure have the autoconia? The maculae is formed by the autoconia. Autoconia is made up of the calcium carbonate particles. तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ऑटोकोनिया किससे यहाँ बने होती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑटोकोनिया फॉर्म बाय द कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स। सो दैट इज कॉल्ड द ईयर डस्ट। इसी ऑटोकोनिया को हम ईयर डस्ट के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इस ऑटोकोनिया आल्सो नोन एज ईयर डस्ट, ध्यान रखें। यहाँ ये पूछ सकते हैं आपसे कि ईयर डस्ट क्या होती है, कहां पाई जाती है, तो ईयर डस्ट यहां इसके अंदर उपस्थित होती है, मैकुली के अंदर उपस्थित होती है। These sensory cells situated in the internal ear are in contact with the small nerve. ये यहाँ पर नर्व से यहाँ कनेक्ट रहती है, जिसको हम वेस्टिबुलर नर्व के नाम से जानते हैं। All these thin nerves combine to form vestibular nerve, branch of the auditory nerve. The sensory crista and the maculae are related with the equilibrium of the body. It is very very important question बच्चों यहाँ पर कि important question बनता है कि which of the following structure is related the equilibrium of the body in the ear. तो आप कहोगे यहाँ पर क्रिस्टा, फर्स्ट इज द क्रिस्टा एंड सेकंड इज द मैकुली आर रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बच्चों बात में समझ में आई यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी और इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी यहाँ पर बना रही है, तो आपका आंसर होगा क्रिस्टा बना रही है। और कौन बना रही है, मैकुली है। मैकुली नामक स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर है, वो यहाँ अपनी बॉडी को बैलेंसिंग बनाने में हेल्पफुल है। इससे रिलेटेड जो नर्व है, क्रेनियल नर्व यहाँ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर नर्व। यहाँ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकती है, इससे कनेक्ट कौन सी नर्व है जो ब्रेन तक मैसेज भेज रही है, तो आंसर कहेंगे यहाँ पर वेस्टिबुलर नर्व है। अब देखिए द क्रिस्टा कंट्रोल एंड मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट एंड द मैकुली रेगुलेट दिस एट स्टैटिक पोजिशन। हमारी दो पोजीशन है, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाना है कि दो पोजीशन। एक हम रन कर रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी है बैलेंस्ड मूवमेंट कर रही है, तो कौन बनाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। कौन बना रहा है, क्रिस्टा। एट द टाइम ऑफ मूवमेंट विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, तो आंसर होगा यहाँ क्रिस्टा। एंड एट द टाइम ऑफ स्टैटिक पोजीशन, जब हम एक जगह स्थिर खड़े हैं, स्टैटिक यहाँ पर स्टैंडिंग है, उस समय हमारी बॉडी को बैलेंस कौन बना रहा है, तो आंसर होगा मैकुली है। दैट इज सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंसिंग स्ट्रक्चर। तो उस समय हमारी है वो मैकुली उस पोजीशन में बॉडी को बैलेंस करने का फंक्शन कर रही है। हम खड़े हैं, किसी के ऊपर गिर नहीं रहे हैं, किसी के ऊपर हाथ हमारा फिक्स है, हमारी नेक फिक्स है, हमारी लेग फिक्स है, तो ये एक बैलेंस है। ये बैलेंस कौन कर रहा है, उस समय मैकुली कर रही है। जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, खुद मूवमेंट कर रहे हैं, उस समय बैलेंस कर रहा है, तो कौन कर रहा है, क्रिस्टा कर रहा है। बच्चों ये बात आपके समझ में आई है, ठीक है। आगे चले हम यहाँ, तो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोक्लिया एंड कोक्लियर कैनाल के रूप में हम यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं। एक डायग्राम के दो रूप में यहाँ समझाया गया है, बहुत ही सुंदर डायग्राम आपके सामने रखा गया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिसमें यहाँ 3 कैनाल बताई गई है। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल बताई गई है। इस कैनाल को हम लेटरल कैनाल कहेंगे। ये जो कैनाल है इस लेटरल कैनाल, और ये कैनाल है पोस्टीरियर कैनाल है यहाँ। और ये जो एक यहाँ एंटीरियर इस साइड में ये कटिंग है, कट दिखाया गया है, एंटीरियर है सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाया गया है। फिर इसके बाद में बच्चों यहाँ वेस्टिब्यूल चैम्बर है, जिसमें एक यूट्रिकुली है और एक सेकुली है। ये एक चैम्बर है और ये एक चैम्बर है, यूट्रिकुली और सेकुली। ये 2 विंडो है, एक विंडो ये है, एक विंडो ये है। इस विंडो को हम कहेंगे राउंड विंडो, इस विंडो को हम कहेंगे ओवल विंडो। इससे यहाँ कनेक्ट रहता है कौन, ये कोक्लिया कनेक्ट रहता है। तो ये बच्चों यहाँ बताया गया है वेस्टिबुलर अपरेटस में कौन कौन बना रहा है, एक वेस्टिब्यूल बना रहा है और एक सेमी सर्कुलर कैनाल बना रहा है। वेस्टिब्यूल का मीनिंग यूट्रिकुलस चैम्बर और सेकुलस चैम्बर हो गया है यहाँ। तो यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वेस्टिबुलर अपरेटस इज फॉर्म बाई, तो फर्स्ट इज यहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल एंड सेकंड इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को हटा दें हम तो वेस्टिब्यूल फॉर्म बाय 2 टाइप ऑफ चैम्बर, सेकुली चैम्बर एंड यूट्रिकुली चैम्बर। यहाँ तो किसी प्रकार से ये वर्ड यहाँ काम में ले सकते हैं। तो ये वेस्टिब्यूलर अपरेटस बना। ये बच्चों यहाँ कोक्लिया का सेंटर पार्ट है बिल्कुल, और ये एक कैनाल है जिसे वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ द कोक्लियर नर्व है। तो यहाँ पर ये जो ब्रांच है वेस्टिबुलर नर्व की ब्रांचेज है जो यहाँ से ओपन होती है, और इस प्रकार से ये दिखाई गई है। एक बहुत ही सुंदर डायग्राम के रूप में आपको इसे समझाने का प्रयास किया है। एक्चुअल में ओरिजिनल जो हमारे अंदर, हमारे ईयर के अंदर इंटरनल ईयर है वो इस प्रकार से होता है। उसको निकाल के हम देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। आप जब मेडिकल के अंदर प्रवेश करोगे, एंटर करोगे और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पे होगे तो इस प्रकार के इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बच्चों, और बहुत ही सुंदर तरीके से आप ऑपरेट करोगे। और ऐसी स्ट्रक्चर को जो आपका प्रीवियस से नॉलेज है उस नॉलेज के बेस पे आप इसे प्रैक्टिकली स्टडी करने का प्रयास करोगे। तो ये बच्चों, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए अपने को पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। यहां तभी पहुंच पाएंगे जब हम नीट क्लियर करेंगे और अच्छी रैंक के साथ क्लियर करेंगे, तो ही हम ऐसी इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को देख पाएंगे। अदरवाइज आप हल्की कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आप थ्योरिकल नॉलेज आप जरूर ले लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पर मिलने की संभावना कम रहेगी यहाँ। इसलिए बच्चों मैं कहता हूं बार बार कि ड्रीम बड़ा लो और बड़े ड्रीम के साथ और अच्छी कॉलेज में पहुंचो, जिससे हम हर एक प्रैक्टिकल को बड़े जीवंत अवस्था में, हम कह सकते हैं लाइव कंडीशन में उस चीज को हम देख सकें उस मेडिकल कॉलेज के अंदर, हम सीख सकें, और उस नॉलेज के द्वारा हम सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं इससे रिलेटेड उनको हम ठीक कर सकें। तो इस प्रकार का हम जज्बा पालें कि हम एक अच्छे डॉक्टर बने, न कि हम ऐसे डॉक्टर बने कि हम यहाँ पर किसी भी पेशेंट को, हमारे पास में पेशेंट आए और उसे हम यहाँ पर रेफर कर दें किसी दूसरे डॉक्टर के पास में। हम वो डॉक्टर नहीं बने कि रेफर करने वाले हो, हम वो डॉक्टर बने रेफरिंग जो हमारे पास में हो। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को आप समझे होंगे यहाँ बच्चों। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोक्लिया एंड कोक्लियर कैनाल की हम बात करें यहाँ, तो देखिएगा द कोक्लियर डक्ट इज कनेक्टेड बाय ए बोनी लेबिरिंथ इन सच ए वे दैट इज डिवाइडेड इनटू ए कैविटी ऑफ द लेबिरिंथ इनटू द डोर्सल एंड द वेंट्रल चैम्बर। सो इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कोक्लिया following a 3 chamber are seen clearly। देन ये 3 चैम्बर आपके सामने यहाँ एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये 3 चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं। कब? जब हम यहाँ पर कोक्लियर कैनाल को डिवाइड करते हैं, कोक्लिया को डिवाइड करते हैं। इसमें देखिएगा बच्चों ये अपर चैम्बर है जिसे इसके अलावा वेस्टिबुलाई कहेंगे, चैम्बर नंबर 1। ये चैम्बर नंबर 2 है जिसे इसके अलावा टिम्पैनी कहेंगे, जो अभी हमने स्टडी की थी। ये चैम्बर नंबर 3 है जिसे इसके अलावा मीडिया कहेंगे। इसमें क्या है? पेरिलिम्ब। इसमें क्या है? पेरिलिम्ब। ये किसका पार्ट है? बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है। ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट है। इसके अंदर क्या है? एंडोलिम्ब। इस बात को समझिए। ये सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। ये एक मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये इतनी मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या है? यहाँ पर रूफ बना रही है किसकी? यहाँ स्केला मीडिया की। इसको हम कहेंगे रीजनल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा गया है।
स्केला मीडिया का जो रूफ ऑफ द स्केला मीडिया, अपर पार्ट ऑफ द स्केला मीडिया, विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्म, आंसर होगा रीजनल मेम्ब्रेन है वो यहाँ फॉर्म कर रही है। ये बच्चों बेसिलर मेम्ब्रेन है, अभी बात की हमने, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है जो स्केला मीडिया का यहाँ बेस बना रही है और इसके ऊपर एक यहाँ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहेंगे यहाँ। तो इसी प्रकार एक और मेम्ब्रेन है यहाँ से इसके ऊपर प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो इसकी बात अभी हमने की थी यहाँ, तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। फिर आपको यहाँ एनसीईआरटी का एक बहुत ही सुंदर डायग्राम यहाँ पर लिया गया है, तो इसको हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ये डायग्राम एज इट इज यहाँ लेबलिंग के लिए आ सकता है, इसलिए इस डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, इस बात को आप समझे। आगे देखिए हम यहाँ नेक्स्ट स्केला वेस्टिबुलाई क्या है, इसकी डिटेल देखिए हम यहाँ। तब देखिएगा स्केला वेस्टिबुलाई इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ एंड इज फिल्ड विद द पेरिलिम्फ। द स्केला टिम्पेनाई इट इज सिचुएटेड एट द वेंट्रल साइड बिलो द कोक्लियर डक्ट, इट इज आल्सो फिल्ड बाय द पेरिलिम्फ। तो दोनों के अंदर पेरिलिम्फ है, दोनों ही किसका पार्ट है, ये बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है, और बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या भरा रहता है, पेरिलिम्फ भरा रहता है। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ। देन स्केला मीडिया इट इज द triangular cavity of the cochlear duct that is situated between scala vestibuli and scala tympani. It is filled with the endolymph. ये यहाँ पर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट है, तो इसके अंदर क्या फिल है बच्चों, यहाँ पर एंडोलिम्फ यहाँ पर फिल है। तो इस बात को भी आप समझ चुके होंगे। Thin dorsal wall of the cochlear duct is called vestibular membrane or regional membrane. The ventral wall of the scala media is thick wall is called basilar membrane. तो दो मेम्ब्रेन आपको बताइए यहाँ पर, रीजनल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन, और तीसरा यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो कवर्ड है यहाँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। यहाँ the scala vestibuli and the scala tympani are connected through the small aperture at three edges of the cochlea. This aperture is called the helicotrema. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। हेलिकोट्रेमा है वो क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई को यहाँ कनेक्ट करने वाला एक मेम्ब्रेनस पोर है। या स्केला मीडिया इज ए ब्लाइंड क्लोज एट इट बोथ दी साइड। ये ब्लाइंड है, क्लोज है, जबकि स्केला टिम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई है ये ओपन होता है किससे, ये राउंड विंडो से और या ओवल विंडो से ये ओपन होता है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या है, व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ स्ट्रक्चर बन रही है और ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर बच्चों पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन अबाउट द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई? A sensory ridge is present at the whole length of central line at the epithelium lining of the basilar membrane of scala media. It is called organ of Corti. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेंसरी स्ट्रक्चर रिलेटेड टू हियरिंग, ये बात हम पहले कर चुके हैं यहाँ। ये एक ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की स्ट्रक्चर बताइए, देखिएगा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ वेरियस टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर एक सेल है पिलर लाइक सेल है यहाँ पर। दूसरे टाइप की यहाँ देखिए ये मेम्ब्रेन दिखाई गई है, बेसिलर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। तीसरे प्रकार की यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसे नर्वा फाइबर्स अपन कहेंगे यहाँ से, और इनर हेयर सेल दिखाई गई है, और ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और नीचे की तरफ ये रेटिकुलर पार्ट है, इसे हम कहेंगे रेटिकुलर लेमिना, और ये आउटर साइड में हेयर सेल प्रेजेंट है जो या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्ट होकर और यहाँ इंपल्स डेवलप करती है यहाँ। तो इस प्रकार से एक ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आप यहाँ पर समझ चुके होंगे यहाँ। देन द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इट हैज two types of cell. First is the sensory cell and second is supporting or suspensory cell. The suspensory cell also divided in three portions. For the supporting, first is a cell of Dieter or basal cell. Second is a pillar cell or rod cell. Third is a Hansen cell or rectangular cell. There are three types of cell found in the organ of Corti, which is give to the support to the organ of Corti.
And upper part of the supporting cell, that is called sensory cell, they has many special type of cilia. Then in between the empty space of the sensory and suspensory cell, a lymph-like fluid that is called cortilymph is filled. This space is called tunnel of Corti. इस स्पेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? टनल ऑफ Corti. Numerous microvilli called stereocilia. The sensory hair are present at the free surface of the each sensory cell. यहाँ सेंसरी सेल है, इसके ऊपर जो सीलिया होती है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच टाइप ऑफ सीलिया, तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोसीलिया. इसके ऊपर जो सीलिया होते हैं उसे क्या कहेंगे? स्टीरियोसीलिया के नाम से जानते हैं. ये बच्चों इस प्रकार से इस सेल को यहां दिखाया गया है, आप देखिएगा. एक डायग्राम आपके सामने लिया गया है जिसमें ये सेल्स है. इस सेल में कंटिन्यू यहाँ पर इनर हेयर सेल है और ये नेम लेबलिंग आउटर हेयर सेल है और ये यहाँ दिखाया गया है. और इसमें यहाँ इम्पल्स कंटिन्यू आ रहा है, इम्पल्स आ रहा है, साउंड वेव आ रही है और ये साउंड वेव ब्रेन तक इम्पल्स को सेंड कर रही है. हेयर सेल है, इस प्रकार से ये यहाँ इम्पल्स को लेने का प्रयास कर रही है. तो इस प्रकार की एक यहाँ ऑर्गन कोर्टाई की हम डिटेल स्ट्रक्चर और देख सकते हैं ये. इसके बाद में at the ventral surface of the sensory cell there are thin fiber of the auditory nerve present that form cochlear branch. At the organocorti a thin jelly like membrane is called the tectorial membrane. organocorti की सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है, organocorti क्या था? ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये सेल्स है, ये क्या है? यहाँ पर organocorti है यहाँ, और इसके ऊपर बच्चों यह जो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन थी, जेली लाइक मेम्ब्रेन, जो इसके नॉर्मल टाइम में टच नहीं रहती, इसको हम कहेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. लेकिन जब कोई साउंड वेव यहाँ पर आती है, ये साउंड वेव जब यहाँ पर आती है तो इसके ऊपर यहाँ सीलिया होते हैं, स्टीरियोसीलिया, और ये सीलिया इसके टच हो जाते हैं जिससे यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप होता है और वो हेल्पफुल है. किसमें? हियरिंग में हेल्पफुल है यहाँ पर. तो ये बात आप समझ गए होंगे. यहाँ in this membrane all sensory hair free edge are embedded. Main credit of the hearing goes to the organ of corti. तो बार बार मैं इस वर्ड को काम में ले रहा हूं, बार बार ये वर्ड काम में आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है. तो हियरिंग का जो मेन यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रेडिट किसको जाता है, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को ये क्रेडिट यहाँ पर जाता है. तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम बच्चों समझ सकते हैं. तो ये बच्चों आज जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ईयर लाइक बोनी लेबिरिंथ, लाइक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ईयर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोक्लिया लाइक स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई. इसे बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे. एंड ऑल्सो यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड यूट्रिकुलस चैम्बर एंड सेकुलस चैम्बर. एंड ऑल्सो यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द मैकुली एंड क्रिस्टा लाइक सेंसरी स्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम, दैट इज रिलेटेड टू द बैलेंसिंग फॉर्मिंग ऑफ द बॉडी. तो इसे आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे बच्चों. और इसके अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए और आपकी रैंक को बूस्टअप करने के लिए. तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. थैंक यू सो मच.